So hello everyone, welcome back to the channel. As I told you earlier, we have started a Polity PYQ series with detailed explanations and especially focused on CFA preparation. So in this series, we are not just solving the questions but also understanding the concepts behind each options so that you can tackle any tricky question which come in exam. So today we are moving ahead with the CFA 2023 and we have already covered CFA 2024. So today we are moving ahead with the CFA 2023 and this video is going to be very important because will cover the concept plus elimination technique also, and we go behind each option so we understand why an option is right and wrong and others are wrong. So most importantly, we'll connect the question with the static polity concepts also in detail. So make sure you watch the video till the end and try to solve the questions along with me. So let's move to the first question. Which of the following statement about the national emergency is correct? So which of the following statement about national emergency is and are correct? Simply if we talk about the national emergency, so we have national emergency. It comes under article 352. Got it? It is defined on three grounds. First is war, second is external aggression, and third one is in armed rebellion. Before this we have internal disturbance, but according from 44th Amendment Act we have changed it into armed rebellion and then external aggression and then war. We have three grounds on which national emergency is defined, that is war, external aggression and armed rebellion. But before this we have internal disturbance and we have changed it from, we have done the amendments from 44th Amendment Act, so we have changed into armed rebellion. And if we talk about the cabinet recommendation, in national emergency we need written cabinet recommendation, right? And also recommendation with prime minister and other ministers. We need prime minister and other ministers recommendation. And secondly, if we talk about the approval, so we need both houses, emergency to be approved by both houses within the 1 month, and national emergency need special majority to be approval, special majority. Okay, what is special majority? We talk about special majority. Special majority होती है हमें total membership plus 2/3 members present and voting. So this is all about special majority. Next, if we talk about the period, so we have 6 months for national emergency. Okay, and if we want to revoke this, the revocation was done by president at any time. And there is also one more provision: if Lok Sabha possesses a resolution by simple majority, then also revocation can be done. So if Lok Sabha passes with simple majority, okay, so if it passes the resolution with simple majority, it means national emergency can be revoked. So I am talking about national emergency. I am not talking about the state emergency, financial emergency. The provisions are different from both. Okay. So next, in this national emergency, federal structure converted into unitary structure. Next is, if we talk about the directions, so union, it means center, can give direction to state on any matter. This is very important point. सेंटर जो है वो हमारा कोई भी डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को किसी भी मैटर के ऊपर, ठीक है. एंड नेक्स्ट, आर्टिकल 19, वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ अ फंडामेंटल राइट and it's suspended automatically. If we talk about the suspension of article, so article 19 suspended automatically, but in which case? In external emergency it is suspended but if we talk about internal emergency it is not suspended. अब मैं बताऊँ तुम्हें एक्सटर्नल इमरजेंसी की कौन सी ऐसी प्रोविजंस हैं. एक्सटर्नल इमरजेंसी हम वॉर,
या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन को क्या कहते हैं? जब इमरजेंसी वॉर की वजह से हो या फिर एक एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से हो, बट इंटरनल इमरजेंसी हमारा सिंपली आर्म्ड रिबेलियन की वजह से अगर हो तो उसको बोला जाता है इंटरनल इमरजेंसी. तो इमरजेंसी ऑफ टू टाइप, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. बेसिक. ऑल्सो देयर इज मोर प्रोविजन. नेक्स्ट इज if under article 359 what happens, हमारे पास दो आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21. what happened with आर्टिकल 20 एंड 21? ये दोनों की दोनों हमारे प्रोटेक्ट किए जाते हैं अंडर नेशनल इमरजेंसी. ठीक है, आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जाता था, बट आर्टिकल 20 एंड 21 वॉज प्रोटेक्टेड, सो इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड. ठीक है, इसको सस्पेंड नहीं करा जा सकता है, इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड. तुम मुझे बताओगे कि आर्टिकल 20 और 21 क्या था. अगर मैं तुम्हें आर्टिकल 20 के बारे में बताऊँ, सो आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21. आर्टिकल 20 इज़ बेसिकली प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन. अगर तुम्हें किसी ने पकड़ लिया है तो तुम्हारे पास एक अपनी प्रोटेक्शन है, तुम्हें अपने को बचाने के लिए. ठीक है, तो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन. बट इफ यू टॉक अबाउट आर्टिकल 21, इट इज़ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. तो हमारे पास दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 20 एंड 21, जो कि सस्पेंड नहीं होते हैं. कौन से अंडर के आर्टिकल? अंडर आर्टिकल 359 एंड आर्टिकल 19 गॉट सस्पेंडेड. दैट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट एंड दीज टू ऑल्सो आर द फंडामेंटल राइट्स. दिस इज ऑल अबाउट नेशनल इमरजेंसी. अब अभी तक मैं तुम्हें बताऊँ, नेशनल इमरजेंसी 3 जगह लगी हुई है, 3 बार लगाई गई है. दैट इज़ अंडर 1962, in 1971, in 19 wait, let me take a page. So national emergency just wait. नेशनल इमरजेंसी अभी तक जस्ट 3 बार लगाई गई है, 1962 में, इन द केस ऑफ 1971 एंड ऑल्सो इन द केस ऑफ 1975. 1962 में लगी थी ड्यू टू चाइनीज़ का एग्रेशन. जब 1961 में वॉर हुआ था, चाइनीज़ एग्रेशन. ठीक है, जब नॉर्थ ईस्ट फ्रंट जो एरिया के टाइम पे आता था, इसको अरुणाचल प्रदेश अभी बोला जाता है. ठीक है, तब हमारी नेशनल इमरजेंसी लगी थी. 1971 कब लगी थी? जब ड्यू टू दी वॉर विद पाकिस्तान, तब लगी थी. इन 1971 हमारा ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्ड रिबेलियन. ठीक है, उस टाइम पर इंटरनल डिस्टर्बेंस था. ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम पे, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर जब थे, तब के टाइम पे लगी थी हमारे पास नेशनल इमरजेंसी. ठीक है, तो सिंपली हमें नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी थी, 1962 में, 1975 में, 71 में एंड 75 में. 62 में चाइनीज़ एग्रेशन के साथ, क्योंकि 1961 में हमारा वॉर होता है इंडिया चाइना. 1971 में पाकिस्तान के साथ, हमारे पाकिस्तान के रीज़न से लगी थी, जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था. एंड 1975 में हमारे पास इंटरनल डिस्टर्बेंस की रीज़न से लगी थी, बिकॉज एट दैट टाइम हमारे पास इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड उन्होंने कुछ इमरजेंसी लगाई थी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस. अकॉर्डिंग टू 44th अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, अकॉर्डिंग टू 44th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1976, हमने क्या करा? वेट. अकॉर्डिंग टू 44th अमेंडमेंट एक्ट हमने क्या करा? बेसिकली हमने आर्म्ड रिबेलियन को लेके आए एंड चेंज किया हमने इंटरनल डिस्टर्बेंस से. ठीक है, पहले हम इंटरनल डिस्टर्बेंस बोलते थे, हमने इसको आर्म्ड रिबेलियन के लिए चेंज किया. कौन सी अमेंडमेंट से? हमने 44th अमेंडमेंट लगाई. अब 44th अमेंडमेंट से और क्या क्या चेंजेस हुए? सबसे पहले क्या हुआ? हमने सब्स्टिट्यूट किया आर्म्ड रिबेलियन को. सेकेंडली हमने क्या किया? बेसिकली मैंडेट किया कि हम एक रिटन एडवाइस या फिर रिटन रिकमेंडेशन से नेशनल इमरजेंसी को लगाया जाएगा. थर्डली हमने क्या किया? हमने सिंपली इंश्योर करा कि आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये कुछ आर्टिकल्स थे हमारे पास. हमने सब्स्टिट्यूट करा आर्म रिबेलियन को, मैंडेट करा रिटन एडवाइस को, और हमने इंश्योर करा कि आर्टिकल 20 एंड 21 को सस्पेंड नहीं करा जाएगा व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज़ अप्लाइड. सो ये हमारी कुछ चीज़ें थी जो कि हमने नेशनल इमरजेंसी की अपने पढ़ी. अब हम और पढ़ेंगे. अब हम कुछ इमरजेंसी के बारे में और डिटेल में करते हैं. अब क्या होता है ना, बेसिकली अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं तो कुछ नेशनल इमरजेंसी 3 वे से लगाई जाती है. हमारे पास आर्टिकल 352 होता है, आर्टिकल 356 होता है एंड आर्टिकल 360. 352 बोला जाता है नेशनल इमरजेंसी को, जो कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ. आर्टिकल 356 इज़ स्टेट इमरजेंसी
या फिर उसको प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है, ठीक है। एंड 360 इज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 टाइप की इमरजेंसीज होती हैं। नेशनल इमरजेंसी, 356 हमारी स्टेट इमरजेंसी। मैं तुम्हें बताऊंगी स्टेट इमरजेंसी क्या होती है। इफ़ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई द रूल्स और डायरेक्शंस विद द सेंटर, तब हमारे सेंटर जो है वो या तो प्रेसिडेंट है वो रूल लगाते हैं, स्टेट इमरजेंसी लगाते हैं, स्टेट इमरजेंसी। अगर स्टेट जो है वो सेंटर की रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनसे कंप्लाई नहीं होती है, तब हमारा प्रेसिडेंट जो है स्टेट इमरजेंसी लगाता है। इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। 360 बेसिकली सिंपली हम फाइनेंशियल इमरजेंसी को बोलते हैं जब हमारे फाइनेंशियल चीज़ों में दिक्कत आती है। जब 1991 में जब चीज़ें हुई थी तब भी हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी थी। अभी तक हमारे पास कभी भी इमरजेंसी नहीं लगी है, डिस्पाइट हमारे पास उस समय फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह एट दैट टाइम वॉज द मिनिस्टर, सो उन्होंने कुछ चीज़ें सॉल्व करी थी, बट फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक कहीं नहीं लगी है। 352 आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट, हमारी 1962 में लगी है, 1971 में लगी है, 1975 में लगी है नेशनल इमरजेंसी। बट स्टेट इमरजेंसी बहुत बार लग चुकी है। सबसे पहली बार तुम्हें बताया अगर तो सबसे पहली बार पंजाब में लगी थी, ठीक है। तो ये कुछ हमारे इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं। इनके बीच में डिफरेंस मैं तुम्हें बताऊँ अगर, तो चलो देख लेते हैं डिफरेंस भी। इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो, नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है, एंड हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। सिंपली अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करूँ मैं, जस्ट वेट वी रेज दिस। फर्स्ट अगर मैं पॉइंट करूँ तो ये हमारी अप्रूव की जाती है विद इन 1 मंथ, तो नेशनल इमरजेंसी को हमें अप्रूवल का टाइम कितना चाहिए होता है, 1 महीने का। बट यहाँ पर जो हमारी स्टेट इमरजेंसी है एंड हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी है, इनको अप्रोक्सीमेटली टाइम चाहिए 2 मंथ्स का। एंड सेम फॉर नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी 2 मंथ्स का। सेकेंड अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो इसमें हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। हमें ऑलरेडी पढ़ के आए हैं स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती थी, और स्पेशल मेजॉरिटी होती थी सिंपली टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 प्रेसिडेंट वोटिंग। लेकिन हमारी स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी को दोनों को सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। वेरी बेसिक पॉइंट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, हमें इसको रीन्यू करवा सकते हैं इन एवरी 6 मंथ, रीन्यूड विद एवरी 6 मंथ्स। बट इफ़ आई टॉक अबाउट हमारे पास प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसमें भी हमारे पास 6 मंथ पे इसको रीन्यू करवाते हैं। बट फाइनेंशियल इमरजेंसी का कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है, कोई भी रिपीटेड नहीं है। मतलब इसको हम रिपीटेड अगर एक बार लग गई तो उसको तुम एक बार और करवा के ख़त्म कर सकते हो। और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका मैक्सिमम पीरियड कितना है, मैक्सिमम पीरियड इसके पास इन्फिनाइट है। कभी भी कितनी टाइम भी लगा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी, बस इसको रिन्यू करवाना पड़ता है एवरी 6 मंथ्स, ठीक है, अप्रूव करना पड़ता है विद इन 1 मंथ। एंड इसका मैक्सिमम पीरियड 3 ईयर्स है। किसका, हमारे पास प्रेसिडेंट रूल का 3 साल के बाद हमारी अगेन वो हमारी मैक्सिमम पीरियड के बाद ख़त्म हो जाएगी। एंड ये भी हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी इन्फिनिट पीरियड के लिए लग सकती है, और यहाँ पर कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब अगर मैं बात करूँ स्टेट की गवर्नेंस के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ता है, लास्ट पॉइंट है अफेक्ट ऑन स्टेट गवर्नेंस। सिंपली इफ यू टॉक अबाउट अफेक्ट ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स, तो अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है और अगर स्टेट इमरजेंसी लगी है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी तो हमें पता है, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 एंड स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356। तो सिंपली इसमें क्या होता है कि हमारी जो नेशनल इमरजेंसी में जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है या स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कंटिन्यू टू फंक्शन, ठीक है, कंटिन्यू टू फंक्शन, क्योंकि वो सस्पेंड नहीं होती है। बट इफ अगर स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है या तो प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो अब हमारी सस्पेंशन मतलब हमारी जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो सस्पेंड हो जाती है या तो डिसमिस हो जाती है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अफेक्ट ऑन स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। चलो इसको एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप की इमरजेंसीज आती हैं अंडर आर्टिकल 352, 356 एंड 360। नेशनल इमरजेंसी अंडर 352, स्टेट इमरजेंसी अंडर 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर 360 आर्टिकल। बेसिकली हमें नेशनल इमरजेंसी के अंदर इसको अप्रूव करवाना पड़ता है विद इन 1 मंथ। एंड 356 की में अगर हम बात करें स्टेट इमरजेंसी की, तो हमें 2 महीने लगते हैं। एंड सेम फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी, हमें 2 महीने के अंदर रिन्यू करवाना पड़ता है। हमें नेशनल इमरजेंसी में हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, बट दोनों के अंदर बाकी स्टेट और फाइनेंशियल में हमें सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाएगा।
अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करूँ तो हमारे पास इसको रिन्यू करवाना पड़ता है विद 6 मंथ्स। सेम फॉर स्टेट इमरजेंसी, रिन्यू करवाना पड़ता है 6 मंथ्स, बट यहाँ पर कोई भी हमारे पास टाइम लिमिट मेंशन नहीं है, तो इसको कभी भी चीज़ें मेंशन हो सकती हैं। मैक्सिमम पीरियड इन्फिनिट है हमारा नेशनल इमरजेंसी का। इसमें स्टेट इमरजेंसी याद रखना 3 साल के लिए लगती है, जो प्रेसिडेंट लगाते हैं मैक्सिमम हमारा 3 साल है, ठीक है। और ये भी हमारी इन्फिनिट पीरियड के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। स्टेट की बात करें तो जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तब हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फंक्शन में कंटिन्यू रहती है, अपने काम करती है, ठीक है। बट स्टेट इमरजेंसी में क्या होता है, बेसिकली जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तब हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है, वो सस्पेंड हो जाती है, डिसमिस हो जाती है, ठीक है। ये कुछ हमारे आर्टिकल्स थे और कुछ प्रोविजंस थे हमारी इमरजेंसी के, नेशनल इमरजेंसी के, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं। आई होप ऐसी इतनी डिटेल जो है तुम्हारा एक टॉपिक ईजिली रिवाइज हो जाएगा अगर तुम ऐसे टॉपिक वाइज चलो, ठीक है। नेक्स्ट गोज टू दी लेट्स गो टू दी क्वेश्चन। सो बेसिकली द नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मे बी मेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली व्हेन देयर इज सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ इज थ्रेटन्ड बाय वॉर। मैंने बताया था 3 ग्राउंड्स होते हैं, वॉर, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल एग्रेशन एंड थर्ड इज आर्म रिबेलियन। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। उन्होंने पूछा क्या है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ मूव टू सेकंड स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स पावर टू गिव डायरेक्शन टू स्टेट ऑन एनी मैटर। क्या नेशनल इमरजेंसी में क्या होता था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक पावर आ जाती थी कि वो स्टेट को कोई भी डायरेक्शन दे सकती है किसी भी मैटर के ऊपर। बिल्कुल सही बात है, मैंने यहाँ पर तुम्हें करवाया भी था कि सिंपली हमारा कोई भी पावर को दे सकते हैं। जहाँ पर हमने पढ़ा था, कहाँ पर था वो चीज़, नहीं था कहीं, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर यूनियन एंड स्टेट में कोई भी डायरेक्शन दे सकता है ऑन एनी मैटर। सो नेक्स्ट मूव टू थर्ड पॉइंट, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डज नॉट सस्पेंड द स्टेट लेजिस्लेचर। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज मैंने बताया था इन नेशनल इमरजेंसी हमारी स्टेट लेजिस्लेचर कंटिन्यू टू फंक्शन, वो सस्पेंड नहीं होती है। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ मूव टू फोर्थ स्टेटमेंट, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन कंटिन्यू फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months एट अ टाइम ओनली इफ अप्रूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पर एक कैच है। क्या कैच है? जो इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी कैन कंटिन्यू फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months। क्या कोई मैक्सिमम पीरियड का टाइम दिया था? नो, वो तो सिर्फ स्टेट इमरजेंसी के टाइम था। स्टेट इमरजेंसी के टाइम पर एक मैक्सिमम पीरियड था, वो था हमारे पास 3 years। बट हमारे पास नेशनल इमरजेंसी में कोई भी मैक्सिमम पीरियड नहीं था। देखो यहाँ पर मैंने करवाया है, बेसिकली यहाँ पर मैक्सिमम पीरियड इन्फिनाइट होता है अंडर नेशनल इमरजेंसी, बट स्टेट इमरजेंसी में हमारे पास 3 years होते हैं, एंड सिमिलरली फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी हमारे पास इन्फिनाइट टाइम होता है, ठीक है। हम इसको रिन्यू करवा सकते हैं 6 months में। यहाँ पर अगर वर्ड मेंशन होता है रिन्यू, तब हमारी ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होनी थी। बट उन्होंने कहा है कि जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है कैन कंटिन्यू फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months, नहीं कैन रिन्यू फॉर अ 6 months, सही था। बट यहाँ पर उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम फॉर 6 months जो कंटिन्यू करते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आंसर हो जाएगा बस 1, 2 and 3, ठीक है। सो 1, 2, 3 इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये ऐसे क्वेश्चंस करना अच्छा लगा हो, और ऐसे हम पूरी के हर एक क्वेश्चन की डिटेल्ड एक ओवरव्यू लेंगे कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, और प्लस उसके साथ हम उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स, देखो यहाँ पर भी सेम चीज़ मेंशन है, मैंने तुम्हें एक नोट्स की फॉर्म में दे दिया है। ग्राउंड्स, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रेबेलियन, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356, स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद द कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शंस, फाइनेंशियल इमरजेंसी, द थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। अप्रूवल टाइमलाइन मेजोरिटी कितनी होती है? विद इन मंथ में हमें अप्रूव करवाना पड़ता है। कौन सी में? नेशनल इमरजेंसी में हमारे पास स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, 2/3 प्रेसिडेंट वोटिंग चाहिए, एंड स्टेट इमरजेंसी में 2 months, एंड सिंपली फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी अगेन 2 months, एंड सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। ड्यूरेशन की बात करें तो 6 months की ड्यूरेशन चाहिए हमारे पास नेशनल इमरजेंसी में, और रिन्यूअल भी हमारा मैक्सिमम पीरियड फॉर इन्फिनाइट यहाँ पर मेंशन था, मैंने बताया था। और सेम अगर स्टेट इमरजेंसी की बात करें तो 6 months एंड मैक्सिमम पीरियड 3 years, बट यहाँ पर इंडेफिनिट कोई भी रिपीटेड अप्रूवल नहीं नीडेड है, ठीक है। एनाटॉमी भी देखिएगा नेशनल इमरजेंसी की अंडर आर्टिकल 352, ये नेशनल इमरजेंसी है तो 3 बार लगी है अभी तक। हमारा 1962 में लगी है, चाइनीज़ के एग्रेशन के टाइम पर, पाकिस्तान के टाइम पर लगी थी, एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस के टाइम पर लगी थी, ठीक है। 44th अमेंडमेंट ने हमारे पास 4 चीज़ें चेंज करवाई थी। पहले रिप्लेस किया था इंटरनल डिस्टर्बेंस को हमारे पास आर्म रिबेलियन के साथ। मैंडेट किया था रिटन डिवाइस फ्रॉम कैबिनेट, मतलब प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स चाहिए। रिड्यूस किया था अप्रूवल विद इन
2 months and to 1 month इन्होंने यही रिड्यूस किया था. एंड ऑल्सो इंश्योर्ड आर्टिकल 20 and 21 इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड. वेरी बेसिक. एंड ऑल्सो गवर्नर की बात करें तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर हो यूनिटरी में चेंज हो जाता है, और हमारा जो यूनियन है वो कोई भी काम या कोई भी सेंटर को डायरेक्शन दे सकता है ऑन एनी मैटर. ठीक है. राइट ब्रांच कौन सी है? अंडर आर्टिकल 358 एंड 359. व्हाट हैपन? आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है, बट आर्टिकल 20-21 सस्पेंड नहीं होता है, बिकॉज वो आर्टिकल्स कौन कौन से थे कि हमारी प्रोटेक्शन इन दी रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन एंड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की एब्सोल्युटली शील्ड करे जाते हैं, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, इसको सस्पेंड नहीं करा जाता है. ठीक है. तुम ऐसे नोट्स से भी रिवाइज कर सकते हो. और उसके बाद तुम्हारे पास मैंने बिल्कुल डायरेक्टली हैंड रिटन लाइक एक सिंपली नोट्स दे दिए हैं. ठीक है. तो बहुत ईजी थे, तुम्हें हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और याद करना है. नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सुप्रीम कोर्ट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. इससे हम सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट को रिवाइज कर लेंगे. सुप्रीम कोर्ट कब बना था, कौन से अंडर आता है. ठीक है. चलो मूव टू सुप्रीम कोर्ट. ओके. सुप्रीम कोर्ट सबसे पहली बार इसको इनॉग्रेशन हुई थी 28 जनवरी 1950 के टाइम पे. ठीक है. अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ऑल्सो अभी अगर मैं बात करूँ सुप्रीम कोर्ट की तो 34 जजेस हमारे पास हैं इन सुप्रीम कोर्ट, इंक्लूडिंग CJI मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सिंपली अगर मैं बात करूँ, सारे के सारे जजेस को अपॉइंट करते हैं कौन? प्रेसिडेंट हमारे. ऑल जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. ठीक है. क्वालिफिकेशन क्या होती है कि तुम्हें जज बनना है सुप्रीम कोर्ट का? सिंपली क्वालिफिकेशन पहली चाहिए, यू शुड बी सिटीजन. सेकंड अगर मैं बात करूँ, हमारे पास हाई कोर्ट के जज होने चाहिए तुम लोग. यू शुड बी हाई कोर्ट जज फॉर 5 years. एंड इफ़ यू आर हाई कोर्ट के एडवोकेट फॉर 10 years. तुम्हारे पास ये कुछ प्रोविजंस होते हैं, तुम्हें क्वालिफिकेशन चाहिए होती है टू बी ए सुप्रीम कोर्ट जज. एंड हमारे पास एक डिस्टिंग्विश, अगर तुम जूरिस्ट हो, ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, तुम क्या हो सकते हो? बेसिकली तुम एक क्वालिफाई सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो. तुम्हारे पास ये कुछ प्रोविजंस हैं. तुम सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, तुम हाई कोर्ट के जज होने चाहिए फॉर 5 years एंड हाई कोर्ट के एडवोकेट होने चाहिए फॉर 10 years. देखो, जज एक अच्छी पोजीशन है तो 5 साल के लिए टाइम चाहिए. एडवोकेट उससे छोटी चीज़ है तो उससे तुम 10 years के लिए चाहिए. एंड डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट. यहाँ पर कैच कर देगा, यहाँ पर तुम्हें किसी को भी मेंशन कर देगा, तुम्हें स्पीकर को मेंशन कर देगा, तुम्हारा CJI मेंशन कर देगा, जो कि आई थिंक इस बार मेंशन था इन CDS में. ठीक है. CDS 120 में ऐसा कुछ क्वेश्चन था जहाँ पर जूरिस्ट, जहाँ पर इन द ओपिनियन ऑफ लोकसभा, इन द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ पर इन द ओपिनियन ऑफ CJI या फिर स्पीकर कर दिया था. ठीक है. पर यहाँ पर आएगा प्रेसिडेंट के ओपिनियन में तुम एक जूरिस्ट होने चाहिए हो. ठीक है. टेन्योर कितना होना चाहिए तुम्हारा? सिंपली टेन्योर शुड बी 65 years. ठीक है. अगर तुम्हें सुप्रीम कोर्ट के जज बनना है, और तुम्हें रिमूव कर सकते हैं ओनली प्रेसिडेंट. ठीक है. तुम्हें रिमूव कौन कर सकते हैं? ओनली प्रेसिडेंट. ठीक है. और अगर बात करूँ सेकेंड रिमूवल की, तुम्हें रेजोल्यूशन दिया जाएगा पार्लियामेंट के ऊपर विद स्पेशल मेजॉरिटी इन दी बोथ हाउसेस. ठीक है. तो एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा. अगर तुम्हें सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है तो सिंपली एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा पार्लियामेंट के ऊपर, सो डैट लोकसभा और राज्यसभा दोनों के दोनों हाउसेस में पास हो. कौन सी मेजॉरिटी के साथ? बेसिकली स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है. स्पेशल मेजॉरिटी क्या थी? टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. ठीक है. तो ये कुछ हमारी स्पेशल मेजॉरिटी के प्रोविजंस थे. अब सैलरीज कहाँ से आती हैं इनकी? हमारी सैलरीज आती हैं CFI के बाद वहाँ से. ठीक है. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. एक होता है हमारे पास CFI, एक होता है हमारे पास कंटीजेंसी फंड. तो वो होता है इमरजेंसी के लिए, बट ये सिंपली अगर सैलरीज की बात करें तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ठीक है. अब हमारे पास इनके पास सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 होता है, मतलब सिंपली इनके पास एक रिट जुरिसडिक्शन होता है. ठीक है. जहाँ पर अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाए तो यहाँ से हम रिट पिटीशन कर सकते हैं. ठीक है. एक ऑल्सो आर्टिकल आता है आर्टिकल 143, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. ये हमें बताता है कि प्रेसिडेंट कैन सीक द कोर्ट्स ओपिनियन ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ. ठीक है. प्रेसिडेंट जो है सिंपली सीक कर सकता है कोर्ट्स को ऑन द ओपिनियन ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ. चलो ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास.
अब इम्पीचमेंट का प्रोसेस देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच किया जाता है या रिमूव किया जाता है। ठीक है, अब हमें अगर रिमूव करना है, देखो इम्पीचमेंट वर्ड हम सिर्फ प्रेजेंट के लिए यूज़ कर रहे थे, अब हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है तो हमें उसको रिमूव किया जाएगा। ठीक है, तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास इम्पीचमेंट, ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट इम्पीचमेंट तो इट कम्स अंडर आर्टिकल 124, फोर्थ का एक क्लॉज है। 2 प्रोविजन से इनको रिमूव किया जाता है। अगर उन्होंने मिसबिहेवियर का है कुछ प्रूव कर देते हैं तब हमारी इम्पीचमेंट हम कर सकते हैं, या तो रिमूव कर सकते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज को, अगर हम इनकैपेसिटी की बात करें। ठीक है, तो ये सब कुछ कहाँ मेंशन है, इट वाज मेंशन इन जजेस इंक्वायरी एक्ट, ठीक है, 1968, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर उन्होंने कहा था कि इम्पीचमेंट जो है या तो रिमूवल, ठीक है, रिमूवल जो है आर्टिकल 124 मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी से 2 रीजंस होते हैं। अब मैं तुम्हें इम्पीचमेंट का प्रोसेस बताऊंगी बेसिकली कि इम्पीच कैसे होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं इम्पीचमेंट के प्रोसेस में। सिंपली अगर इट वाज फाउंडेड ऑन 28 जनवरी 1950 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड क्वालिफिकेशन की बात करें, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया प्लस 1 of 3 क्राइटेरिया, या तो वो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए फॉर 5 years, या तो वो हाई कोर्ट के एडवोकेट होने चाहिए फॉर 10 years, या तो वो डिस्टिंग्विश जरिस्ट होने चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पर एक कैच है, द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कंपोजिशन की बात करें तो सो वी हैव 34 जजेस होने चाहिए टोटल, इंक्लूडिंग दिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सैलरीज जो है वो हमारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती हैं। जुरिस्डिक्शन की बात करें तो आर्टिकल 32 जो है वो जुरिस्डिक्शन देता है टू सीक द कोर्ट ओपिनियन टू क्वेश्चन ऑफ लॉ, एंड अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो कि वॉयलेट किया जाता है तो हम सिंपली जुरिस्डिक्शन आर्टिकल रिट्स लगा सकते हैं, रिट पिटिशन कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। एंड सिमिलरली एक हाई कोर्ट के पास भी होता है, वो आता है अंडर आर्टिकल 226, याद रखना। आर्टिकल 143 एक प्रेसिडेंट जो है दे कैन सीक टू द कोर्ट्स ओपिनियन ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है एक सिंपली, एंड इसका टेन्योर होता है मैक्सिमम 65 ईयर्स ऑफ एज। किसका? सुप्रीम कोर्ट के जज का। ठीक है, तो ये हमने सुप्रीम कोर्ट की एपिक्स जुडिशरी देखी कि क्या सुप्रीम कोर्ट की एनाटॉमी होती है। अब हम इम्पीचमेंट की बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कैसे किया जाता है। देखो इम्पीचमेंट वर्ड हम सिर्फ प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं, बट मैं तुम्हें यहाँ पर बोल रही हूँ जस्ट बिकॉज कहीं कहीं क्वेश्चन में मेंशन है इम्पीचमेंट वर्ड। ठीक है, इट वाज रेगुलेटेड बाय इंक्वायरी एक्ट 1968, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज का था। बट एक और एक्ट आया था जो कि इंक्वायरी एक्ट 1968, उन्होंने कुछ 2 प्रोविजंस दिए थे आर्टिकल 124 के अंदर। ठीक है, क्या था? सिंपली अगर प्रूव किया जाए मिसबिहेवियर को, या तो फिर अगर इनकैपेसिटी से वो हो चीज़ें। ठीक है, तो ये 2 प्रोसेस हैं जिससे हम सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं। अब क्या प्रोसेस होता है सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का, चलो देखते हैं। देखो, इट इज़ रिमूव्ड ओनली बाय प्रेसिडेंट एंड रेजोल्यूशन बाय पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, सिंपली हम इसको रिमूव कर सकते हैं ओनली बाय प्रेसिडेंट, और ऑल्सो अगर हम रेजोल्यूशन लेके आए, पार्लियामेंट जो रेजोल्यूशन लेके आए दोनों के दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए। कौन सी मेजोरिटी के साथ? स्पेशल मेजोरिटी के साथ। और कौन से आर्टिकल्स के अंदर? आर्टिकल 124 हमें बताता है कि इट वाज प्रूव्ड मिसबिहेवियर अगर इनकैपेसिटी की बात हो रही हो। तो क्या प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट का? ठीक है, सिंपली अगर हम बात करें, सबसे पहला प्रोसेस होता है इनिशिएशन का। अगर हम मोशन को इनिशिएट करते हैं, हम एक रिमूवल मोशन लेके आते हैं, इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, किसी भी हाउस में। तो सिंपली हमें क्या चाहिए होता है? 100 सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं लोकसभा से और 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं राज्यसभा से। ठीक है, स्टेप 2 क्या होता है? एडमिशन का। क्या एडमिशन का? कि हमें स्पीकर और चेयरमैन जो है उनके पास एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है, या तो वो एडमिट कर सकते हैं या तो वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 2 पावर्स होती हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या था? रिमूवल, एक मोशन लेके आते हैं। ठीक है, दूसरा प्रोसेस क्या था? या तो एडमिट करे या तो रिफ्यूज़ करे। कौन? लोकसभा में स्पीकर होते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं। ठीक है, इंक्वायरी कमेटी बैठाई जाती है। ठीक है, अगर एडमिट की जाए तो 3 मेंबर की कमेटी को फॉर्म किया जाता है। उसमें कौन कौन होते हैं? सीजे या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है, बेसिकली सीजे, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, और चीफ जस्टिस जो कि हाई कोर्ट के होते हैं। ठीक है, सीजे एंड डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन दी, किसके पास? हमारे सिंपली डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होते हैं।
3 चीज़ें होती हैं। एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है, इसमें 2 जजेस होते हैं और एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होता है। 2 जजेस में आता है, एक तो सुप्रीम कोर्ट का, एक होता है हाई कोर्ट के जज, ठीक है, और एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होता है इंक्वायरी कमेटी के अंदर। तो 3 प्रोसेस तुम्हें पता लग गए। ऑल्सो लास्ट प्रोसेस क्या होता है, सिंपली रिमूवल प्रोसेस, ठीक है। रिमूवल प्रोसेस में क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए हमारे ईच हाउस में, स्पेशल मेजॉरिटी से हमारे हर हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, ठीक है। अब मेजॉरिटी हमें, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या था, बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। और अगर उसके बाद हमारे पास जो सेम लास्ट कहा जाता है प्रेसिडेंट के, 5th प्रोसेस क्या होता है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। फिर हमारे पास ये सब कुछ प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो ऐसे कौन से प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, जो अभी तक उनको प्रोसेस लेके आया गया है इन लोकसभा, बट क्या हुआ है कि वो उनको हम अभी तक रिमूव नहीं, अभी तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव नहीं हुआ है, बट एक प्रेसिडेंट को लेके आए थे, उनका प्रोसेस, उनका नाम था वी रामास्वामी, बट जो इनका मोशन था वो डिफीट हो गया था इन लोकसभा, मतलब इनको 100 सिग्नेचर्स नहीं मिले थे। और राज्यसभा में क्या होता है, बेसिकली हमें 15 चाहिए होते हैं इन राज्यसभा, ठीक है। ये हिस्टोरिकल नोट याद रखना, वी रामास्वामी इन 1991 एंड 1993 में इनको एक लाया गया था, इनके लिए मोशन, मुझे डिफीट हो गया था इन लोकसभा। चलो, दिस इज़ ऑल अबाउट हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। होप आपको हर एक चीज़ डाउट जो था वो क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन। इम्पीचमेंट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो करेक्ट नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, जहाँ पर मेंशन किया था नॉट करेक्ट, ठीक है। मोशन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट एट साइन बाय एटलीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, नो, 100 फ्रॉम लोकसभा एंड 50 फ्रॉम राज्यसभा के सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मूव टू नेक्स्ट स्टेटमेंट। द मोशन इज इन्वेस्टिगेटेड बाय कमेटी ऑफ 3 मीन्स 2 जजेस कौन से थे, CJ फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एंड CJ फ्रॉम हाई कोर्ट एंड ऑल्सो 1 डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। If the committee find the judge guilty of misbehavior or that he suffers from incapacity, तो 2 provisions थे, पहला था misbehavior, दूसरा था incapacity. The motion together with report the committee is taken up for the consideration in the houses where the motion is pending. Simply 2 प्रोसेस होते हैं इनके रिमूवल के लिए, पहला होता है misbehavior, दूसरा होता है incapacity, थर्ड प्रोसेस कोई नहीं होता है। नेक्स्ट इज, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। द जज विल रिमूव्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स हिज ऑर्डर ऑफ रिमूवल। मैंने बताया था कि 5th प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली सब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, देन हमारे पास 5th जो प्रोसेस होता है वो इम्पीचमेंट का, वो हमारे पास जो जजेस विल बी रिमूव्ड जब हमारा प्रेसिडेंट जो है वो असेंट देंगे रिमूवल के लिए, ठीक है। तो ये हमारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है। उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा था, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, NHRC। सिंपली इफ आई टॉक अबाउट NHRC, ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसकी कौन से स्टैट्यूट के अंदर आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैटिक है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ठीक है। कौन से एक्ट के अंदर आता है स्टैट्यूट, कौन से एक्ट के अंदर आता है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ठीक है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन सी बॉडी है, ये हमारी एक, जस्ट वेट, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेकेंड अगर मैं बात करूँ, ये सर्व करता है एज अ वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट, वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट। सिंपली अगर यहाँ पर हमारी लाइफ की बात हो रही है, जहाँ पर लिबर्टी में अगर कुछ वायलेशंस हो रहे हैं, हमें इक्वालिटी की अगर बात करें, हमें इक्वालिटी नहीं मिल रही है, अगर हमारी डिग्निटी की बात हो रही है, तो हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा हम वहाँ पर अपने जो है राइट्स को डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, हमारी एक मल्टी मेंबर बॉडी है जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, वो एक मल्टी मेंबर बॉडी है। इसका मतलब क्या होता है, एक चेयरपर्सन होंगे, ठीक है, और 5 फुल टाइम मेंबर्स होंगे। तो टोटल कितने बंदे हैं इसमें, टोटल हमारे पास 6 मेंबर्स होंगे, एक चेयरपर्सन और 5 फुल टाइम मेंबर्स। चेयरपर्सन होगा, he or she should be must be retired CGI, ठीक है, यहाँ पे रिटायर्ड जज होने चाहिए, किसके, सुप्रीम कोर्ट के। तो चेयरपर्सन होगा, he or she should be must be रिटायर्ड CGI और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं
वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है NHRC के बारे में। या तो एक सर्विंग और रिटायर्ड जज होने चाहिए, सर्विंग और रिटायर्ड जज होने चाहिए कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के। सेकेंडली सर्विंग और रिटायर्ड जज होने चाहिए कहाँ के, हाई कोर्ट के, ठीक है। थर्ड हमारे पास देखो, ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन ये था, सेकंड पर्सन ये है, थर्ड पर्सन ये है। जो बाकी के जो 3 पर्सन्स हैं, टोटल कितने थे, 6 थे ना, बाकी के जो 3 पर्सन्स हैं वो उसमें से इन्होंने ये कहा है कि एक एटलीस्ट एक वुमेन होनी चाहिए, तो एक वुमेन हो गई, ठीक है। और ये 3 पर्सन्स को एक काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए किस चीज़ की, ह्यूमन राइट्स के ऊपर। तो वही पर्सन्स को हम ऐसे फुल टाइम मेंबर्स मानेंगे, ठीक है। और इनको सिलेक्ट कौन करता है, इनकी सिलेक्शन कमेटी के अंदर कुछ मेंबर्स आते हैं, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी के अंदर कुछ मेंबर्स आते हैं, और जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स आते हैं वो होते हैं चेयरपर्सन, और मेंबर्स इनको अपॉइंट करता है, बेसिकली अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। और किसकी रिकमेंडेशन से, जो कि एक 6 मेंबर कमेटी होती है, ठीक है। एक 6 मेंबर कमेटी बनाई जाती है जो कि इनको रिकमेंड करती है या फिर इनको अपॉइंट करती है। तो उन कमेटी में कौन कौन होता है वो देखेंगे हम, नीचे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। बेसिकली उन मेंबर्स में हमारे पास एक प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, एक स्पीकर होते हैं, और एक डिप्टी चेयरमैन होते हैं जो कि राज्यसभा के होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन होते हैं, ठीक है। और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट एक हमारे पास होम मिनिस्टर होते हैं। तो 5 मेंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन बोथ हाउसेस में से, ठीक है। तो 6 मेंबर कमेटी हो गई। तो PM, स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन, लीडर ऑफ अपोजिशन वो दोनों के हाउसेस में होने चाहिए, एंड होम मिनिस्टर। और इनकी एज क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। एज की बात करूँ तो 3 ईयर इनका टेन्योर होता है, 3 साल के लिए इनका टेन्योर होता है, ठीक है। ये जो 3 साल का टेन्योर था वो 2019 के अमेंडमेंट एक्ट से चेंज किया गया था, ठीक है। और इनकी एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 70 ईयर्स, ठीक है। किसकी, जो NHRC इसी के मेंबर्स हैं। और ये एलिजिबल होते हैं री अपॉइंटमेंट के लिए, दे आर एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। कौन, हमारे NHRC के मेंबर्स, ठीक है। सिंपली इनका फंक्शन देखो, अगर मैं NHRC की बात करूँ तो इनका फंक्शन होता है या तो इंक्वायरी करना, या तो इंटरवीन करना, या तो विज़िट करना। विज़िट कहाँ करना, जैसे जेल्स की इंस्पेक्शन करना, कि वहाँ पर जो राइट्स, ह्यूमन राइट्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं जा रहा। लिटरेसी को चेक करना कि एजुकेशन डायरेक्टली मिल रही है नहीं मिल रही है। एक और इनकी लिमिटेशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी एक लिमिटेशन होती है। क्या लिमिटेशन होती है, इनको एम्पावर किया जाता है टू इंक्वायर इनटू एनी मैटर बट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 साल। मतलब जो 1 साल के अंदर अंदर जो काम हो रहा है उसके अंदर ही इंक्वायर कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड जो कोई ऐसी चीज़ हुई है तो उनके पास उनकी लिमिटेशंस होती हैं, उसको एम्पावर नहीं होते, उसको इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट NHRC। तो कौन से एक्ट के अंदर आता था, हमने पढ़ा प्रोटेक्शन, सिंपली आता था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर मैंने एक चार्ट की फॉर्म में दे दिया। NHRC क्या होता है, वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट, जिसमें लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी की बात की जाती है। ये स्टैट्यूटरी एक मल्टी मेंबर बॉडी जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 6 मेंबर्स कौन होते हैं, कंपोजिशन क्या होता है, एक चेयरपर्सन होता है, ठीक है, और एक चेयरपर्सन होता है, 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन कौन होना चाहिए, एक रिटायर्ड CJ या फिर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज। और हमारा मेंबर 1 एक सर्विंग और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज। मेंबर 2 होते हैं हमारे सर्विंग और रिटायर्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है। एंड मेंबर 3, 4, 5 उसमें से एक वुमेन होनी चाहिए जिनका नॉलेज हो हमारी ह्यूमन राइट्स के ऊपर। और क्या ऑपरेशंस होते हैं, इनका एज और टेन्योर की बात करें तो 3 साल के लिए इनका टेन्योर होता है, 70 ईयर्स इनकी मैक्सिमम एज होती है। एंड दे आर एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। NHRC के मेंबर्स को एलिजिबल होते हैं री अपॉइंटमेंट के लिए। फंक्शंस, इंक्वायरी करना, इंटरवीन करना, विजिट करना, जेल्स को इंस्पेक्ट करना या फिर लिटरेसी को चेक करना। प्रेसिडेंट रोल का क्या होता है, सिंपली प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं मेंबर्स विच इज़ बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 6 मेंबर कमेटी। मतलब प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन होते हैं, स्पीकर होते हैं, डिप्टी चेयरमैन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं कि दोनों हाउसेस में, और सेंट्रल होम मिनिस्टर होते हैं। तो ये बेसिकली हमारी 6 मेंबर कमेटी है। एंड
इनकी एक लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन क्या होती है कि कोई भी पावर नहीं होते इनटू एनी मैटर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास NHRC के कुछ डिटेल्स थी जो कि स्टैट्यूटरी एक वॉच डॉग माना जाता है। ठीक है, ह्यूमन राइट कमीशंस का हो गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब छोटे छोटे क्वेश्चन ही हैं। अब देखो, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की बात करें तो 2005 में ये एक्ट आया था। ठीक है, अब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो होता है बेसिकली हमारा पास 2004 में इसकी जो एक केस आया था, पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अंदर हम कौन सा लेके आए थे, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, एंड देयर शैल नॉट बी मोर देन 12 मेंबर्स। सही बात है, नहीं ऐसे कुछ नहीं है, देयर शैल नॉट बी 10 मेंबर्स। इसमें 10 मेंबर्स की बात करी जाती है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर्स। नहीं, 5 ईयर्स नहीं होता है। बेसिकली जो चीफ हमारे मेंबर्स होते हैं, तो इसमें कुछ हमारे, अगर मैं तुम्हें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में बताऊँ, यहाँ पर मैंने मेंशन किया होगा RTI के बारे में, यहाँ नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे बता देती हूँ कि RTI की क्या डिटेल्स होती हैं और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो वेट, नो मूव टू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो था, सिंपली ये क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया था बिकॉज इसमें तीनों की स्टेटमेंट्स ही इनकरेक्ट है। मैं बताती हूँ कैसे। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है हमारा, ठीक है, इसमें क्या होता है, MPs, एक केस आया था, कौन सा केस था, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2004 में आया था। ठीक है, इट वॉज रिलेटेड टू RTI, दैट इज़ राइट इन्फॉर्मेशन। जो इन्होंने बोला था कि इसमें MPs एंड MLAs की इन्फॉर्मेशन होगी हमारे पास, उनकी प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन और उनकी बैंक डाटा की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और इन्होंने ही इसी ऐप के अंदर एक और आया था, नोटा। ठीक है, नोटा तुम्हें पता है कि हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आए थे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेके आए थे। नोटा को इंट्रोड्यूस किया था इन 2013। कौन से केस के अंदर, अंडर द केस ऑफ पीपल यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ मूव टू क्वेश्चन। हमारे पास जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं वो ऑफिस को होल्ड करते हैं टर्म ऑफ 5 ईयर्स, नहीं, इनके पास 3 ईयर्स का टर्म होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज़ एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, दे आर नॉट एलिजिबल। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है क्योंकि इस क्वेश्चन को UPSC ने ड्रॉप करा था, याद रखना। ठीक है, तो ऑफिशियल आंसर की चेक कर सकते हो, इसको ड्रॉप करा था। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में है। नाउ नेक्स्ट मूव टू, हमारे कुछ केसेस हैं हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग डील विद द हैबिस कॉर्पस। हैबिस कॉर्पस क्या होता है? हैबिस कॉर्पस एक अंडर कौन से एक्ट से आया था? ये आया था हमारे पास एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जबलपुर में वर्सेस शिवाकांत शुक्ला 1976 की बात करते हैं। ठीक है, तो ये एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर एक केस हुआ था, इसके अंदर हमने हैबिस कॉर्पस को इंट्रोड्यूस किया था। अब क्या होता है ये हैबिस कॉर्पस? सिंपली मैंने तुम्हें बताया कि एक रिट्स होती है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास रिट्स होती हैं, तो इट कम्स अंडर आर्टिकल 32 जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, आर्टिकल 226 जब हम हाई कोर्ट की बात करें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट वाली जो रिट्स होती हैं वो सिंपली फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताती हैं, एंड हाई कोर्ट की रिट्स जो होती हैं वो कोई भी मैटर के बारे में, इवन फंडामेंटल राइट्स एनी अदर मैटर्स ऑल्सो, वो हमारे पास एडिशन करती हैं, एनी अदर मैटर्स। सिंपली हाई कोर्ट की रिट्स को ज़्यादा माना जाता है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट की जज को। ठीक है, इसको ठीक है, और ये दोनों की दोनों कौन सी बॉडी है? इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, और इनको कैसे बोला जाता है? अगर क्वेश्चन में, इनको प्रेरोगेटिव रिट्स कहा जाता है। डन। नाउ अब हमारे पास कुछ रिट्स होती हैं और कुछ केसेस होते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट। यहाँ पर कुछ अदर केसेस भी हैं। स्टेट ऑफ UP एंड राज नारायण ORS 1975, तो ये इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था। ठीक है,
केस तो ये इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था। मानेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, उनका ईयर याद रखना, नेक्स्ट बार ये पूछ सकते हैं कि किससे रिलेटेड था, तो इंदिरा गांधी के रिलेटेड था। ये मानेका गांधी जो था वो इन्होंने पासपोर्ट को होल्ड कर लिया गया था इनके, तो तब ये केस आया था। ठीक है, मतलब इन्होंने राइट टू लाइफ के बारे में बताया था, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बताया था। नंदिनी सतपथी वर्सेस PL दानी केस, ये जो आर्टिकल था वो आर्टिकल 20 को ही एक्सपैंड करता है, आर्टिकल 20 की 3rd क्लॉज को एक्सपैंड करता है। ठीक है, तो इतना सा था बस। नाउ देखो यहाँ पर कुछ रिट जुरिस्डिक्शन में मैंने मेंशन किया है। देखो आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट के रेस्ट्रिक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को। बैलेंस ऑफ पावर की बात करें तो दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट बॉडी है, इनको प्रेरोगेटिव राइट्स की द्वारा इशू किया जाता है। 226 हाई कोर्ट के बारे में बताता है, फंडामेंटल राइट्स को मेंशन करता है, प्लस एडिशनल एनी अदर मैटर को भी यूज़ करता है, जिनकी मतलब ब्रॉडर जुरिस्डिक्शन है इसके पास। 5 रिट्स है हमारे पास, HMPCQ। ठीक है, मतलब हमारे पास हैबेस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, सर्जरी है एंड quo warranto है। हैबेस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, मैंडेमस का मतलब होता है टू वी कमांड, प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि हाँ अभी छोड़ दो, टू फॉरबिड, सर्जरी का मतलब टू क्वाशन ऑर्डर, एंड quo warranto का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी एंड बाय टू व्हाट वारंट तुम चीज़ कर रहे हो। हैबेस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, इट इज़ एप्लीकेबल टू स्टेट ऑल्सो एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑल्सो। ठीक है, मैंडेमस का मतलब होता है कमांड करते हैं पब्लिक ऑफिशियल्स को कि अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करो, अगर वो बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसके ऊपर रिट लगा सकते हैं, बट कौन सी, प्राइवेट नहीं, पब्लिक की ड्यूटीज़ पे। ठीक है, एंड कैन नॉट इशू अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर के अगेंस्ट हम इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ऑल्सो इंडिविजुअल के। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम प्रोहिबिशन की, हम उसको प्रिवेंट करते हैं लोअर कोर्ट को फ्रॉम एक्सीडिंग जुरिस्डिक्शन, मतलब अगर कोई हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को प्रिवेंट करता है कि तुम ये चीज़ पे मैटर पे सॉल्व मत करो चीज़ें। सर्जरी का मतलब होता है करेक्ट करते हैं अगेंस्ट दी लोअर कोर्ट्स, मतलब जो हाई कोर्ट होता है, ठीक है, वो लोअर कोर्ट को बोलता है सिंपली कि तुम जो ये चीज़ कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम उनको प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, उनके एक्शंस को करेक्ट किया जाता है। यहाँ पर हम प्रिवेंट कर रहे थे, यहाँ पर हम करेक्ट कर रहे हैं। quo warranto का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी एंड बाय व्हाट वारंट, मतलब इनको चैलेंज करते हैं लीगैलिटी ऑफ पर्सन्स क्लेम टू पब्लिक ऑफिस। ठीक है, मतलब अगर हम किसी को चैलेंज कर सकते हैं कि तुम किस अथॉरिटी से ये काम कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारे पास ऐसा क्या प्रोविजन है, तुम व्हाट अथॉरिटी और बाय व्हाट वारंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कुछ केसेस की, ऑलरेडी मैंने बताया हैबेस कॉर्पस 1976 में एक केस आया था, शिवाकांत शुक्ला, जिन्होंने एडिशनल ये इन्वॉल्व थे, ADG इन्वॉल्व थे, ADM इन्वॉल्व थे। एंड राइट टू लाइफ जो था वो मेनका गांधी का केस था, इनके पासपोर्ट से रिलेटेड था और इन्होंने राइट टू लाइफ को एक्सपैंड किया था। एक केस आया था सेल्फ इंक्रिमिनेशन के ऊपर, ठीक है, जो कि 1978 में आया था, नंदिनी सतपथी केस मैंने बताया, जिन्होंने एक्सपैंड किया था किसको, आर्टिकल 20 को। एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें तो उन्होंने पीपल ऑफ यूनियन इंडिया सिविल लिबर्टी मैंने बताया कि जो कि 2004 में राइट टू इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू MPs और MLAs के बैंक डाटा को डिस्क्लोज किया जाए, प्रॉपर्टी बैंक डाटा को प्रपोज किया जाए, कि मतलब जो हमारे MPs और MLAs इलेक्ट किए जा रहे हैं हमें उनके बारे में पता हो कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उनके पास कितना बैंक डाटा है। ठीक है, और इन्होंने ही हमारे पास इसी केस के अंदर नोटा को इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि एक इलेक्टोरल रिफॉर्म की तरह हमें पता है कि नोटा एक हमारे पास होता है ना, कि नोटा पता है ना कि क्या होता है, जो जिसको वोट नहीं देना होता तो वो नोटा को क्लिक करते हैं। ठीक है, तो क्री प्रेसिडेंट का मतलब होता है स्टेट ऑफ UP वर्सेस राज नारायण, ये भी केस था। चलो ये कुछ केसेस थे हमारे पास, ये किसके टाइम पे आया था, इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था। ठीक है, नाउ मूव टू कुछ क्वेश्चन है हमारे पास रिट्स के, और हमारे पास कुछ लिस्ट के। पहले रिट की बात करते हैं, रिट की बात करते हैं। हाई कोर्ट के रिट हमारे पास अंडर आर्टिकल 226 की बात करते हैं, ये इशू करता है रिट्स ऑन द हैबेस कॉर्पस, जो कि मैंडेमस, quo warranto, सर्जरी, प्रोहिबिशन, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, पूछा कौन सा है, नॉट करेक्ट पूछा है। रिट कैन बी इशू टू इन्फोर्स एनी राइट कॉन्फर्ड आर्टिकल 3 फॉर एनी अदर पर्पस। देखो इस रिट को इशू किया जाता है किसी भी पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्लस एनी अदर। सही बात है, क्योंकि जो हाई कोर्ट की थी वो एनी अदर को भी इंक्लूड करती थी, कोई भी अदर भी कोई पर्पस हो रहा है उसकी जगह भी तुम रिट को इशू कर सकते हो। थर्ड बोल रहा है कि दिस पावर कैन डेरोगेट द पावर कन्फर्ड द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 3(2)। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैंने बताया था कि दोनों की दोनों एक इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, तो डेरोगेट क्यों करेंगे, एक पावर दूसरी पावर, एक कोर्ट दूसरी कोर्ट को डेरोगेट क्यों करेगा, अगर ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, तो हमारे पास ये जो आंसर है
ये आंसर करेक्ट है, ठीक है, आंसर करेक्ट। नेक्स्ट, रिट कैन बी इशूड टू एनी अथॉरिटी अंडर इट्स विद इन इट्स जुरिडिक्शन, ठीक है। तो अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो उसकी खुद की जुरिडिक्शन के अंदर हम रिट को लागू कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू लिस्ट। मैं यहाँ पर लिस्ट दी है, कुछ लिस्ट हमारे पास 7 शेड्यूल के अंदर लिस्ट आती हैं, ठीक है। अंडर आर्टिकल 246, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 246 के अंदर लिस्ट को लेके आते हैं 7 शेड्यूल के अंदर। और कौन कौन सी लिस्ट है? यूनियन लिस्ट के अंदर हमारे पास कौन से सब्जेक्ट्स हैं? 98 सब्जेक्ट्स हैं। स्टेट लिस्ट में हमारे पास 59 सब्जेक्ट्स हैं एंड कंट्री लिस्ट में हमारे पास 52 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसमें डिफेंस आता है। देखो, जो मेजर इश्यूज़ होते हैं वो यूनियन के पास आएंगे, वो स्टेट के पास नहीं आएंगे। अब डिफेंस पे कोई रूल बनाना है तो हमारे पास डिफेंस पे रूल कौन बनाएगा? स्टेट बनाएगी या फिर यूनियन बनाएगी? तो बेसिकली वो यूनियन बनाती है। तो यूनियन पे डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, इंटर स्टेट कॉमर्स एंड सेंसस, ये हमारी सारे के सारे जब यूनियन लिस्ट की बात करते हैं तो एक सेंटर जो होता है वो हमारे पास इसके ऊपर लॉ या रूल बनाता है। स्टेट में कौन कौन सी आते हैं? अगर पब्लिक ऑर्डर की बात हो रही है, पुलिस की बात हो रही है, हेल्थ की बात हो रही है, सैनिटेशन की बात हो रही है, एग्रीकल्चर की बात हो रही है, प्रिजनर्स की बात हो रही है, लोकल गवर्नमेंट और फिशरीज एंड मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर स्टेट लिस्ट पे बनाएगा। लेकिन हमारे पास एक अमेंडमेंट आया था, कौन सा अमेंडमेंट आया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसने 5 चीज़ों को इंक्लूड कर, जो कि स्टेट लिस्ट की चीज़ों को कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया था? कॉन्करेंट लिस्ट में। मतलब उस पर कौन कौन बना सकता है? इवन स्टेट भी बना सकती है, इवन हमारे पास सेंटर भी लॉ बना सकती है, दोनों के दोनों बना सकते हैं इन कॉन्करेंट लिस्ट। तो कौन कौन से ऐसी चीज़ थे? पहला था एजुकेशन, दूसरा था फॉरेस्ट, तीसरा था प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एंड एनिमल ऑफ बर्ड्स एंड जस्टिस, मतलब सिंपली एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस एंड वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। अब कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं जिसमें दोनों बना सकते हैं? फैमिली प्लानिंग, वेलफेयर, ऐसी चीज़ें जो कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो कंकरेंट लिस्ट में को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, ड्रग्स, न्यूज़पेपर, मैरिज एंड डाइवोर्स, इवन जीएसटी, जो कि हमारे पास तुम्हें पता है कि टैक्स है, वो हम 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लेके आए थे अंडर आर्टिकल 246A, ठीक है। तो वो भी किसके अंदर आता है? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। ऐसे कुछ पावर्स, ऐसी कुछ चीज़ें जो कि यहाँ तीनों के अंदर इंक्लूडेड नहीं हैं, वो आती हैं हमारे पास रेजिड्यूरी पावर्स के साथ, जो कि आर्टिकल 248 में मेंशन है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास फेडरल बैलेंसेस हैं। अब देखो लिस्ट देख लेते हैं। लेजिस्लेशन इन क्रिमिनल लॉ बैरिंग एक्सेप्शन इज अ सब्जेक्ट अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। क्रिमिनल लॉ की बात करें तो कहाँ पर आ रहा है हमारे पास? अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट बात करें, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी आर सब्जेक्ट्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। जो करेक्ट, विच इज़ नॉट करेक्ट, बाकी सब करेक्ट है, एक जो है जैसे नॉट करेक्ट होगा। इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कम्स अंडर स्टेट लिस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहाँ पर आता है हमारे पास? इट कम्स अंडर यूनियन लिस्ट, ठीक है। ये हमारे पास यूनियन में आता है। बाकी याद कर लेना कि जो क्रिमिनल लॉज हो गए, बैरिंग्स हो गई, ये कहाँ पर आते हैं? सब्जेक्ट अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। बैंकिंग एक्सक्लूसिवली अंडर यूनियन लिस्ट, देखो बैंकिंग यूनियन लिस्ट के अंदर आ रहा है। बट अगर बैंक्रप्सी की बात करें, इंसॉल्वेंसी की बात करें तो वो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। चलो नेक्स्ट मूव टू लास्ट क्वेश्चन। ओके, Who among the following was the first pro tem speaker to be unanimously elected as a speaker of the Lok Sabha? अब देखो pro tem speaker होता क्या है? pro tem speaker बेसिकली एक टेम्पररी पोस्ट होती है एक न्यूली इलेक्टेड हाउस में, ठीक है। देखो जब हमारे पास प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं मेंबर्स को टू प्रिजाइड देयर फर्स्ट मीटिंग, जब हमारी पहली लोकसभा जो हमारी लास्ट लोकसभा है वो डिज़ोल्व हो जाती है, उसके बाद हमारी नई लोकसभा बनती है। और नई लोकसभा के टाइम पर हमारे कोई स्पीकर नहीं होते हैं, तो तब हमारे प्रेसिडेंट एक ऐसी पोस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, नॉट इंट्रोड्यूस पर हाँ उनको एक पोस्ट में एक स्पीकर को इंट्रोड्यूस करते हैं, स्पीकर को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और कौन करते हैं? वो प्रेसिडेंट करते हैं, एक टेम्पररी पोस्ट होती है। पर यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि ऐसा कौन सा पर्सन था जिसको प्रो टेम स्पीकर चूज़ किया गया था बट उसको फिर डायरेक्टली इलेक्ट कर दिया गया स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्या होता है? ये प्रो टेम स्पीकर की टेम्पररी पोस्ट होती है, तब तक रखी जाती है जब तक हमारे नेक्स्ट जो पर्सन है, नेक्स्ट जो स्पीकर है, तब उनको इंट्रोड्यूस ना करा जाए। तो अब अगर हम प्रो टेम स्पीकर जो होते हैं वो उनको ऐसे कौन से थे, तो सिंपली अगर मैं आंसर की बात करूँ तो हमारे पास आंसर है, आंसर सोमनाथ चटर्जी वॉज द पर्सन। इनको प्रो टेम स्पीकर को से चूज़ किया गया था टेम्पररी पोस्ट में, पर इनको डायरेक्ट एक हमारी परमानेंट पोस्ट मिल गई जो कि स्पीकर की, ठीक है।
कौन से ईयर में, 2004 एंड 2009 के टाइम की बात है ये, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्पीकर की मेंशन है। ये स्ट्रिक्टली टेम्पररी पोजीशन होती है विच इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, टू प्रिसाइड ओवर द वेरी फर्स्ट सेटिंग ऑफ अ न्यूली इलेक्टेड हाउस। इट ऑपरेट्स अंटिल दे इलेक्ट द परमानेंट स्पीकर, मतलब ये तब तक रहते हैं जब तक नए स्पीकर को चूज़ ना कर लिया जाए। एंड हिस्टोरिकल एंकर की बात करूँ तो सोमनाथ चटर्जी वॉज द फर्स्ट पर्सन एज अ सर्व एज अ प्रोटेम स्पीकर बिफोर बीइंग इलेक्टेड एज अ ऑफिशियल स्पीकर। मतलब ये सिर्फ ओनली यही पर्सन है जिनको इलेक्ट किया गया था एज अ प्रोटेम स्पीकर एंड फिर इनको डायरेक्टली हमारे स्पीकर बना दिया गया, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम चीज़ों में क्या होता है कि इनको तब तक ऑपरेट करने के लिए बोला जाता है जब तक हमारे न्यूली जो परमानेंट स्पीकर उनको इलेक्ट नहीं करा जाए, उसके बाद उनकी पोस्ट जो है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे और रिवाइज कर देते हैं। एमरजेंसी प्रोविजंस पढ़े हमने 352, 356, 360 एंड ये पावर करते हैं, ठीक है, कि यूनियन को हमारे इसमें क्या होता है, यूनियन जो है वो हमारी एक क्या बन जाती है, फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी हो जाता है, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर हमारा यूनिटरी हो जाता है। नेक्स्ट, ये जो होते हैं मैकेनिज्म होते हैं, चेक करते हैं अथॉरिटी को, प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन्स को, उनको बोलते हैं जुरिसडिक्शन हो गया, इम्पीचमेंट हो गया। ये आर्टिकल 32 आता है सुप्रीम कोर्ट में और 226 आता है हेड क्वार्टर में। और हमने NHRC पढ़ा, ठीक है, हमने 7 शेड्यूल पढ़ा। हमने देखा कि इसमें जो था 246 आर्टिकल के अंदर हम 7 शेड्यूल को लेके आते हैं। इसमें 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन, कॉन्कर एंड स्टेट। जो हमारे पास रेजिडरी पावर्स होते हैं वो अंडर आर्टिकल 248 आती हैं। 248 हमारी रेजिडरी पावर्स आती है जो कि इन तीनों के अंदर नहीं आती हैं, वो सारी पावर्स हमारी रेजिडरी पावर्स के अंदर आती हैं।